अब आ गई हमारी दीप्ति मैम। गुड Good मॉर्निंग morning, ma'am. दीप्ति। Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good बैक टू morning. दिल्ली। Yeah, back to Good Delhi morning, today ma'am. only. अच्छा It टुडे was today at 1 o'clock or something. 1:30. Good लेट morning. फ्लाइट। I had a late flight because yesterday we had to go to Mahabalipuram also. No, it was not just Pondicherry. Oh So we were in wow. Pondicherry till about 11:30 or something like that, 11:30 in the morning. And there were so many places to go before that. And then uske baad then came to, Where did you stay there, Deepthi? In I'll tell Mahabalipuram? you. Okay. It was a beautiful place there, and you must. It's a very small, मतलब 2 kilometer की stretch में I think the whole city only Pondicherry finishes. So like even if you don't have a vehicle, suppose you take a vehicle till that place, till Pondicherry, you वहाँ पे within 2 kilometers framework you have everything. It's not a very big city. It's very tiny, and it's like you can just walk through, and it is so good walking also because it's a French colony. Then you get to see the type of houses and everything that is made there. And kind of these little French cafes. So it's better that, you'll walk mostly if you can, because आधी जगह तो वैसे भी वहाँ vehicles allowed नहीं होती हैं. There's small narrow streets, but amazing food. Yes, I And had been there 38 years back. yeah, so All it's these pretty places, all in different the south. now. Yeah, it's more Yeah. evolved, better. Okay, so we are starting our fresh new chapter. I'll just bring that on the screen. So the first page of the magic book is there here. Once again, we embark on a fresh journey on the magic book. Till the time जब तक magic हमारे subconscious mind का pattern नहीं बन जाती, हमको ये करते रहना है. And we are still far from making a pattern now. हमें अगर लगता है that अभी काफी पता लग गया, because कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि अब हमको बहुत बहुत समझ में आ गया है. We know that, like कैसे मैजिक वर्क करता है, उस वक्त क्या करना है, बट नो, वी हैव नॉट लर्नड इनफ. उस एरोगेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैजिक बुक बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी हमको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज अभी तक वो सारी चीजें टोटली चली जानी चाहिए थी. तो बहुत समझ में आ गया है हाउ दिस प्रैक्टिसेस वर्क एंड एवरीथिंग, है ना. सो विद द फ्रेश न्यू डिपार्चर एंड like the first time reader, we should be reading this and studying this again. एंड कोशिश करके, अभी तक हम में से बहुत सारे लोग हैं जो असाइनमेंट्स नहीं करते थे, ठीक है. असाइनमेंट्स का मतलब ऐसे ही लगता है कि टाइम नहीं मिलता या इनसे करने से क्या होता है, बट हमको पता नहीं है कि अगर 5 मिनट्स भी अगर आप डिवेल्प करते हो ग्रेटिट्यूड को फाइंड करने के लिए, सपोज ऐसा जैसे 3 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, अगर आप बैठ के 3 लोगों के बारे में भी सोचते हो, एंड देन यू सिट एट वन प्लेस एंड you know imagine that those 3 people are sitting in front of you one by one obviously, और आप उनसे बात कर रहे हो कि किस तरह से उन्होंने आपकी जिंदगी बदली. तो अगर आपने अपनी 5 मिनट्स की एनर्जी भी स्पेंड करी उनके लिए, जिस चीज में आप एनर्जी डालोगे वो एक्सपैंड करेगी. तो you're finding those 3 people in your life who've been instrumental in taking your life to another level. Okay, so imagining that those 3 people are sitting in front of you and then you're telling them that see this is what you did, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, मैं पहले इतनी वो थी, उसके बाद आपने आके मेरा हाथ पकड़ा and like just took me out of it. So वो वाली जो एनर्जी होती है, अगर 2 3 4 5 मिनट भी की ना, देर आर फंडामेंटल चेंजेस जो जिंदगी में होने लग जाते हैं. सो इट इज लाइक 2 मिनट मेडिटेशन जो होता है, अगर आप 3 मिनट भी करते हो, 2 मिनट भी करते हो, उसकी वजह से आपके नेक्स्ट 24 आवर्स इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं. सो हमको पता नहीं होता है कि किसी भी चीज में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जो हम इस बुक में करते हैं, अगर हम डीपली ड्वेल करेंगे तो उससे फंडामेंटल पॉलिशिंग हो जाती है हमारी लाइफ की. वो प्लेटफॉर्म ही इतना बढ़िया हो जाएगा एंड लाइफ स्टार्ट्स ऑफरिंग इट्स बेस्ट टू अस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से फाइंड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का जब भी है तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड से ज्यादा होता है फाइंड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमें पता नहीं होता, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जम जाती है. इतना सारा मतलब हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करते रहते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते. तो ये जो रीवायरिंग हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की करनी होती है, सो ये बहुत जरूरी होती है. और फिर सेकेंड बुक जो हम पढ़ते हैं उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ द माइंड वर्क्स ये हमको पता लगता है. जितनी भी सेकंड बुक्स होती हैं वो हमको जीने का तरीका बताती हैं. फर्स्ट बुक है जो हमारा बेसिस ऑफ लाइफ है, दैट इज द स्ट्रक्चर. जैसे कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले होती है कि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव डलती है, उसकी फाउंडेशन डलती है. वो फाउंडेशन सॉलिड होती है जब उसके ऊपर देन बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना. सो इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन इज द मैजिक बुक. उसके ऊपर से आपको जितनी फ्लोर्स डालनी है, जिस कलर की बिल्डिंग बनानी है,
किस तरह से उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, स्टर्डी बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स डालने हैं, केबल्स डालनी है, प्लम्बिंग करनी है, उसमें वो ओवरहेड टैंक बनेगा, ये हमारी सेकेंड वाली बुक होती है। फर्स्ट बुक हमारी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फाउंडेशन है जो सॉलिड कर देती है। अगर फाउंडेशन सॉलिड होती है ना, कितना भी अर्थक्वेक आए, कितना भी स्टॉर्म्स आए, हरिकेन्स आए, वो बिल्डिंग हिलती भी नहीं है ना, it has become earthquake proof now. So in this journey we want to make the scaffolding or the structure of our life as to totally powerful, strong, and that is what we are in here for. That is what the magic book is doing. अगर हमने assignments नहीं किए, अगर आप 50 बार भी पहले assignments कर चुके हो, अभी भी उसमें अपनी एनर्जी, या आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी असाइनमेंट्स करना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना। सो कितनी प्रैक्टिसेस करो। अब अगर आपको लग रहा है कि मैजिक बुक बहुत अच्छे से आ गई है, तो एक दिन में रोज 9 प्रैक्टिस करो, है ना। डू 9 प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस। 2 तो होती हैं हमारी, काउंट माई ब्लेसिंग्स एंड रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, उस 2 के अलावा 7 मोर। Okay, try to do all 9. If you feel that, oh, I know enough and I'm pretty good at being in gratitude all the time, so try and put your energy into doing 9 every day, and then you see how transformational the life becomes. Okay, try to add more practices to your life every day deliberately. Practices ऐसे नहीं होती है कि बस वो नोट पे वो लिखा हुआ है और उस वो कर लिया। इट इज वो जो नोट पे लिखा हुआ है उसको सुबह निकालना है, उसको शाम को निकालना है, इस तरह से। अगर मैजिकल एयर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैजिकल एयर प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि बस आपने वो ब्रीथ कर लिया 5 बार और एक्सेल कर लिया तो मैजिकल प्रैक्टिस हो गई। 5 बार करनी होती है उसको दिन भर में, है ना। तो अगर पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे नहीं कि बस हाँ मैं तो मैजिकल प्रैक्टिस रोज करती हूँ, 5 बार करनी होगी, क्योंकि तरीका वही है कि उसको 5 बार करनी है दिन में, और हर बार 5 बार, 5 times inhalation and exhalation into 5. That is how it is to be done, right? So if you're doing anything, there are some practices जिसको 3 बार निकाल के आपको निकाल के पढ़ना होता है। So this is how we have to go along, तरीके से करके। And if Rhonda Byrne has said in some of the chapters that you have to do it 3 times in a day, some things you have to do 5 times in a day, some things you have to do like 2 times in a day. So the number also has a significance. जहाँ flexibility है, वहाँ उन्होंने हमको बताया है कि minimum आपको इतनी बार करना है। जैसे Cue the Magic में उन्होंने बोला है minimum आपको 7 times करना है। So उसमें you have the flexibility of doing it as many number of times as you want to. ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप आवर लाइफ, इंस्टेड ऑफ दिमाग फालतू की चीजों में इधर उधर जाता है, पास में जाता है, इससे अच्छा अपना दिमाग ना प्रैक्टिसेस में लगा दो। बैठो, जैसे दिमाग परेशान हो रहा है सोचो कि ओके हु आर द 3 पीपल जिनको मैं अभी ब्लेस कर सकती हूँ। सोचो सोचो सोचो, अच्छा वो है, ठीक है उनको, अच्छा एक मेरे रिलेटिव है वो, अच्छा मेरे फैमिली मेंबर है उनको, अच्छा मेरी बेटी है मैं उसको ब्लेस करती हूँ कि उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू, और इस तरह से, है ना। अपना दिमाग इमीडिएटली हटा लो, स्पेशली व्हेन यू आर लो, बिकॉज दैट इज व्हेन वी आर मेसिंग अप आवर लाइफ सो मच मोर। बिकॉज अगर नेगेटिव चीजों को हमने एनर्जी दे दी तो वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमारी जिंदगी में आती हैं। तो इसीलिए जैसे ही दिमाग इधर उधर जा रहा है वैसे ही सोचो कि ओके और कौन कौन वो लोग हैं, या फिर एयर को थैंक यू बोलो, सन को, सन के बारे में सोचो कि ओके लेट मी थिंक अबाउट 5 पॉइंट्स अबाउट द सन, व्हाट द सन डू फॉर अस। ओके इट गिव्स अस हीट, okay, yeah, it gives us light, yeah, then it makes chlorophyll in the plant because sunlight की presence में सब कुछ हरा हरा होता है, और वो हरे प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलता है जो मैं ब्रीथ करती हूँ। ओके, और सन क्या करता है, और कपड़े सुखाते हैं हम लोग, द क्लोथ्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ द सन। ओके, विच इज द 5th पॉइंट, व्हाट इज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ थ्रू आउट द डे। सो मैजिक बुक इज अ वे ऑफ लाइफ। ओके, वो वे ऑफ लाइफ हमको सीखना उस लेवल तक जहां पे हमको 100% कंट्रोल हो जाए अपने माइंड पे, स्पेशली इन टाइम्स व्हेन वी आर लो, बिकॉज उस वक्त हम सबसे ज्यादा हार्म करते हैं अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स में इन्वेस्टमेंट्स देके। ठीक है, इसीलिए हमारी लाइफ में अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं, मनी रिलेटेड है, वो इसीलिए है नेगेटिव चीजों को हमने बहुत एयर टाइम दिया हुआ है। सो नाउ वी डोंट हैव टू गिव एनी एयर टाइम टू इट, वी विल ट्राई टू एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी and try and do more and more of these practices. As I said, if you can do 9 practices in a day, nothing like it, the life is going to change, because 9 is again a number which is 3 times 3 creation. So yes, Dr. Dhruvi from Ahmedabad, you're reading for us. Yes, ma'am. Very good morning. Very good morning, all of you. Good morning. Okay, read the name of the book. Yes. The Magic by Rhonda Byrne. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them.
Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yeah, so here first में सबसे पहले पैराग्राफ में इस किताब में रॉन्डा बर्न ने समझाया है कि शब्दों में कितनी पावर होती है, ठीक है, शब्दों में कितनी पावर होती है. वर्ड्स आर अ रिडल, दे आर व्हाट इज गवर्निंग अस, गाइडिंग अस. तो हम अपने लिए वो वर्ड्स चूज कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी को ये वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, है ना. लव, पीस, हार्मनी, सक्सेस. आई होप कल वाला एफर्मेशन हम सब ने 10 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी भी बार पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ना, लव, पीस, हार्मनी, जॉय, अबंडेंस, हेल्थ. यही था ना कल वाला जो एफर्मेशन हमने टेलीसाइकिक बुक में पढ़ा था, जो मैंने कहा था कि इसको रोज पढ़ना सो दैट इट बिकम्स प्रोग्राम्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. तो वो वर्ड्स अगर हमको डिफाइन करते हैं, जैसी वर्ड्स जैसे आए, ठीक है, बिकॉज वर्ड्स एक्चुअली मेक योर वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज अ कोड दैट वाज गिवन बाय समवन हु इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू नो, बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है. उन्होंने ये बोला था, योर वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर द लिंग्विस्टिक एनिमल्स. So for us, language and the words, they are very, very penetrative in our life. So we have to choose our words that define us very carefully. So whatever we say becomes us, becomes our life. So we have to choose the words that define and govern and control my life. And that goes for each of us. Okay. सो इसमें ऑफ कोर्स वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग. मतलब वो थैंक यू के बारे में लिखा है, मतलब ये डीमिस्टिफाई किया है पूरी किताब में इसको. लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी अपनी जिंदगी डिफाइन करेगा. तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल प्लीज टेक इन योर हैंड्स. अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील टाइट पकड़े रहो कि मैं अपनी जिंदगी को इधर उधर गिरने नहीं दूंगी. एंड आई विल टेक इट इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर आई वांट इट टू गो. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. सो यहाँ पे रॉन्डा बर्न 28-day जर्नी दोबारा से हमारे साथ, हमारे लिए, यू नो, वी विल स्केल दैट जर्नी टुगेदर, ऑल ऑफ अस, एंड मेक बिग शिफ्ट्स इन आवर लाइफ. फंडामेंटली हमको पता लग गया है कि किस तरह से ये लॉ काम करती है, क्या पावर होती है. हमको सिर्फ थैंक यू वर्ड की पावर पता है ना. जो रॉन्डा बर्न ने पावर बुक में पढ़ा है कि सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई प्रेयर होती है तो बस 2 शब्दों में छुपी हुई है, विच इज थैंक यू. अब उस थैंक यू के आगे आपकी मर्जी जो आप लगाओ, ठीक है. थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल पार्टनर जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ. इट कुड बी थैंक यू फॉर, you know, a lovely, thank you that you know, I have a lovely girl in my life, you know, whom I'm about to marry. So it could be anything. आप thank you के आगे कुछ भी लगा दो, that becomes you, that will become you. Okay, and अगर subconscious में repetition के साथ, thank you के साथ वो शब्द है, thank you for my beautiful new dream car, it will become your life. Okay, so much power is there in that word thank you. Thank you is the real magic elixir of life, है ना, जिसकी वजह से we start attracting that particular thing very fast with a high speed into our life. So that is what we are going to do in a 28-day journey. And यहाँ पे ये वाला बार बार लिखा हुआ है, not just now, later also we will have the sentence you know, read. No matter who you are, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, अभी में भी बहुत ही बैंड बजा हुआ है जिंदगी का, बहुत दुख है, ये है वो है, you know, you really don't need to worry. थोड़ा सा patience and perseverance, ठीक है, and that magic will totally change our entire life. हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ पे थे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, ठीक है. बस आपको अपने अंदर कैसे अपनी पॉलिशिंग करनी है ये ध्यान रखो. कई बार ऐसा होगा कि आपकी कोई हो सकता है पुरानी ड्रीम है, सपोज हमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, वी आर सो मेनी ऑफ अस राइट नाउ. सो इट इज वेरी पॉसिबल दैट
we have been in this journey for the last say 8 months, है ना, as an example 8 months is a very long time to be in gratitude. अभी तक तो wish fulfill हो जानी चाहिए थी. तो अगर 8 months में अभी तक नहीं हुई है ना, आप अपने अंदर झांक के देखो एक बार कि आप कितनी बार लो zones में जाते हो. Look at yourself, look into the mirror and say that yes, have I done all the 28-day practices all the times, or say even thrice? I always say that 3 बार भी अगर पूरी किताब कर ली है ना, अगर अच्छे से practices, तो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा, मेजर. ओके, नॉट अ स्मॉल थिंग, मेजर शिफ्ट आ जाएगा. तो अपने आप से पूछ के देखो, have I done all the 28-day practices 3 times ever in the last 8 months? No, then you know what you have to do. That means अभी भी ग्रैटिट्यूड फंडामेंटली वायर्ड नहीं है जिंदगी में. ठीक है, अभी भी फिर अगर ये नहीं करेंगे, अगर पूरे दिन असाइनमेंट्स करने का मतलब है कि ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हैं, है ना. असाइनमेंट्स का मतलब यही है कि आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हो, बिकॉज इसमें पूरे दिन आपको यू हैव टू रैक योर ब्रेन एंड यू हैव टू फाइंड ग्रैटिट्यूड. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. सो उस तरह से वायरिंग हो जाती है, बिकॉज वो कंपल्सिव असाइनमेंट्स होते हैं ना, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है. अगर उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनको आपको ब्लेस करना है, हवा को 5 बार थैंक यू बोलो ब्रीथ करके, इस तरह से अगर बोला, इसका मतलब है हम अपने आप को इनिशियली फोर्स करके ग्रैटिट्यूड करवा रहे हैं. हो सकता है दिल से नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि दिल से नहीं आता है कई बार, है ना. कई बार रोने का मन करता है, वो रोने का मन कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो. दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लाइफ. ठीक है, एक एक दिन में पावरफुल चेंजेस आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस एक एक दिन में आ जाते हैं. ठीक है, इट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस, लेकिन हमने शायद इसकी पावर को अभी उस तरीके से समझा नहीं है जैसे हमको समझना चाहिए था. सो नाउ इज द टाइम, अगेन अ फ्रेश जर्नी. अब अपनी let's all tighten our seat belts, pull up the socks, okay, and let's embark on this journey, take a flight on this plane of gratitude, and हम इसको अच्छे से हार्ड वायर करेंगे अपने अंदर, है ना, बाय फाइंडिंग मोर एंड मोर. अगर आप कर चुके हो पहले, तो फिर अपनी प्रैक्टिसेस को स्टेप अप करो, उसका वॉल्यूम, उसकी इंटेंसिटी, दोनों चीजें, बाय डूइंग मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस एवरी डे, एंड दैट इज हाउ इट विल बी. एंड आई कैन गारंटी यू दैट अगर आपने इस तरह से कर ली, जिस तरह से प्रैक्टिसेस कही हुई है, उसके बाद लाइफ विल हैव अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट, यू नो. और एक ही महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, इतना ज्यादा इसमें पावर होती है. या Quote, by these means you will acquire the glory of the world, the glory of the whole world. Unquote. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. बाय दिस मीन्स मतलब वो भी इसमें लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना. यू विल अक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. ठीक है, चाहे अभी कहीं पे भी हो, एक छोटे से गांव में आप रहते हो, चाहे आपने सिर्फ 12th पास की हुई है, आप कॉलेज कभी आपको जाने का मौका नहीं मिला. ठीक है, तो हम कल ही जब वापस आ रहे थे, तो हम क्वालिफिकेशन से सक्सेस की बातें कर रहे थे रास्ते में, वर्षा, इफ यू रिमेम्बर. सो मैं उस वक्त बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, सो जहाँ पे 2 लोग बातें कर रहे थे आपस में. क्वालिफिकेशन और सक्सेस का कोई रिश्ता नहीं है. ठीक है, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, जब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी शुरू की थी और उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशंस नहीं थी. ठीक है, तो जब एप्पल के ओनर थे, जब उन्होंने शुरू किया, तो बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वो इंडिया आए, उन्होंने यहाँ अपने आप से, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया ना, इधर उधर बाहर की दुनिया को फिक्स करने के लिए. फिर जब वो इंडिया आए 6 महीने के लिए, उन्होंने, वो हिमालय पे रहे लिटरली, क्योंकि उनको अपने आप से कनेक्ट होना था, और वो उनसे वो चीज उनके पास नहीं थी. हिंदुस्तान आए, उन्होंने अपने आप से कनेक्शन करना सीखा, यानी कि वो मेडिटेट करते थे, वो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए, वो सबकॉन्शियस माइंड से अपना कनेक्ट किया, सबकॉन्शियस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहती है, उसके बाद वो वहां पे गए, और उसके बाद उन्होंने, उनकी एप्पल कंपनी आज की तारीख में, यू नो, ही इज एक्वायर्ड द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट. और हम करेंटली इंडिया में बैठ के अपने अपने घरों में, या इंडिया के बाहर भी हैं हम सब हिंदुस्तानी. ठीक है, अपने अपने तरीके से हम कनेक्ट हो रहे हैं ना. So this is how it works, you know. So by this means, that is, by this being in the world of gratitude, you will acquire the glory of the whole world.
पूरी दुनिया की वाहवाही आप अक्वायर करोगे और वो अपने आप आ जाएगा, है ना। हम ये तो प्रे नहीं कर रहे कि ओ लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग ये करें, दैट इज नॉट द इंटेंशन। बाय द टाइम आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हो, मतलब बाय द टाइम आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, जो हम टेलीसाइकिक बुक से होंगे, इसमें हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं, जो बहुत बड़ी पावरफुल प्रेयर होती है। और दूसरी वाली किताब से हम स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट होंगे, जहां पे हम जिंदगी का कोई भी सवाल बाहर से नहीं पूछेंगे, हम अपने आप से पूछेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, irrespective of you being 10th standard, 12th standard, you were a college dropout. Suppose you did your second year BA and then you were a dropout after that because of whatever circumstances, आपकी शादी हो गई, कुछ हो गया. It really does not matter. Okay, you can still become the CEO of one of the biggest companies, या अपने तरीके से आप अपने chosen field में आप ace करोगे, number one हो गए. ओके, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लॉजिक, कोई रीजंस नहीं होते. इट इज नॉट दैट आपको उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप बिलियनर बन सकते हो. इट इज नथिंग लाइक दैट. ओके, इट इज जस्ट दैट आप एनर्जी लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो. अगर एनर्जी, हम सिर्फ एनर्जी की बातें करते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन. सो एनर्जी की जो बात है, एनर्जी की, अगर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमारे लाइफ में, हम पूरी तरह से सबमर्ज्ड हैं उस एनर्जी में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको अपने चोजन फील्ड में सफलता नहीं मिले. चोजन फील्ड कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि आप हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हो सकता है आप मनी के लिए कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो. ठीक है, जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, दैट इज इट. ठीक है, अपने कर्मों का ध्यान रखना है हमको, वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस, तीनों के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में एकदम से पकड़ो अपने आप को. सी दीप्ति, यू आर गोइंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स, यू आर गोइंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस, यू आर गोइंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स. ओके, बस वो याद रखो. एंड देन एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, जो एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है कितने साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 3 से 5000 साल पहले, वो भी मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, 3 to 5000 years बिफोर क्राइस्ट. तब एक पत्थर पे लिख के किसी ने गाड़ दिया था जमीन के अंदर, जिस पे ये लिखा हुआ था, by this means you will acquire the glory of the whole world. That is, by the means of shukrana, gratitude, you will acquire the glory of the whole world. That's not the prayer though, that we want to acquire the glory of the whole world, but that comes as a byproduct, whether you want it or not. Hanji. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. ये रोंडा बर्न का डेडिकेशन है. जब भी कोई काम करते हैं तो इंटेंशनल लिविंग करके किताब ही है, कि जैसे हमने देखा ना, कोई भी ऐसा काम करने जाओ तो आप मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही डिसाइड कर लो. थैंक यू यूनिवर्स दैट माय वर्क वाज डन सो वंडरफुली वेल. ओके, लाइक जब मैं पौंडीचेरी पे गई तो मैं ये लिखा था ना, थैंक यू यूनिवर्स दैट माय ट्रिप वाज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स. सो उस इंटेंशन के साथ, और फिर पौंडीचेरी से बात की थी आंख बंद करके और कहा था कि प्लीज शोकेस योर बेस्ट टू मी. ओके, that is how it was. तो मैं कितनी एनर्जी दे रही हूँ ना तब से. So it is like mutual. So the place gave its best and I gave my best to the place also, by talking so nicely about it, remembering so much, telling all of you all about it, isn't it? So that energy gets multiplied. It is like that. So इस तरह से it's dedication. यही होता है डेडिकेशन, मतलब आप इंटेंशनल कोई चीज करते हो, that what you want the outcome to be. राइट, लाइक कोई भी चीज, इवन इफ इट्स अ नॉर्मल डॉक्टर्स विजिट, वो भी इंटेंशन के साथ करनी होती है ना. दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट माय विजिट टू द डॉक्टर वाज सो अमेजिंग एंड ऑल माय रिपोर्ट्स वर क्लियर एंड यू नो लाइक आई केम बैक सो हैप्पी. पहले से ये बोल के चले जाओ तो अब वो परेशानी चली गई, क्योंकि पहले तो नॉर्मली जब तक हम ये बुक हमारी जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक हम डॉक्टर्स विजिट को थोड़े से एंग्जाइटी के साथ करते थे, थोड़ा सा वरी होता था, थोड़ा सा फियर होता था, है ना. अगर अभी भी डॉक्टर से मिलने जा रहे हो और वरी, फियर और एंजाइटी है, इसका मतलब है अभी भी आप नेगेटिव एनर्जी के साथ हो, कैरी चल रहे हो अपनी जिंदगी में. सो यू हैव टू वाइप दैट आउट. ओके, जब तक वो एनर्जी वहां पे वरी, फियर, एंजाइटी की रहेगी, तब तक ग्रोथ, प्रोग्रेस और विक्ट्री नहीं आएगी.
जिंदगी में, ठीक है? तो एनर्जी चेंज करना, और एनर्जी हम आर्टिफिशियली चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो है, मतलब हम बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स दैट माय डॉक्टर्स विजिट वाज सो अमेजिंग एंड ऑल माय रिपोर्ट्स लाइक indicated that I'm improving so much, I'm so much better now and I'm so happy about it. अब आप गए भी नहीं हो डॉक्टर के पास, उसके पहले ही आपने अपने आप को ये इंटेंशन दे दिया है, ठीक है? तो अपने आप अपने एनर्जी शिफ्ट कर लिए, एनर्जी, और एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. इट इज एज सिंपल एज दैट. दिस इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड. सो या आई मीन लाइक रोना बर्न की इंटेंशन हमारे लिए इस किताब के साथ ये है कि मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू. एक नई दुनिया का दरवाजा ये खोलती है हमारे लिए, जिसके कारण जिंदगी हमारी बहुत जॉयफुल हो जाती है हमेशा के लिए, फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस, मतलब पूरी रिमेनिंग लाइफ जो हमारी है, जितने भी साल हम अवॉर्ड जिएंगे, ठीक है? दिस विल बिकम ब्यूटिफुल, बहुत जॉयफुल. ये इनकी इंटेंशन है हमारे लिए. तभी तो हम इतने सारे लोग अपनी अपनी कंट्री में बैठ के इनकी इंटेंशन के कारण ही लाइक ये किताब पढ़ रहे हैं. हाँ जी. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you to my daughters Kay, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skill to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Kindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Seamus Horar and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. The particular my sister, Jen Child, who heads up the entire publishing team, Anedria Care, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Calipatrik and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Dunzik, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Lori Sherpa, Corey Johnson, Shaylee, Peter Byrne, and my daughter Harley. Thank you to my publishers, Atria Books and Simon and Schuster, to Caroline Reddy, Judith Kerr, Darlene DeLillo, Twins Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Sor. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Wellers for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work, and the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time.
that undefinable, life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. या सो ये अक्नॉलेजमेंट्स ही रॉन्डा बर्न अपनी किताब शुरू से कर रही है, और आपने देखा इतने सारे लोगों को वो थैंक यू बोल रही हैं, और जिनको भी उन्होंने थैंक यू बोला उनको वो रीजन बता रही हैं कि ये किया इसके लिए थैंक यू, वो किया उसके लिए थैंक यू, है ना। दैट मीन्स ये हमको ये इनग्रेन हमारे अंदर भी करेंगे कि जब भी आप किसी के बारे में ग्रैटिट्यूड सोचते हो, सपोज आपको कोई मिला जिसने आपके लिए कुछ किया, ऐसा किया, यू नो, हु मेड इट इजी फॉर यू, सो उसको हम जब ग्रैटिट्यूड देंगे तो हम अपने दिमाग में उसको रीजन बता के देंगे कि थैंक यू टू सो एंड सो फॉर यू नो लाइक फॉर सो एंड सो थिंग। सो दैट इज हाउ वी नीड टू यू नो लाइक, सो रीजन के साथ जब हम बताते हैं तो बहुत ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ होता है, एंड फीलिंग्स आर द फ्यूल, है ना, बिकॉज फीलिंग से फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज होती है। तो आपको लगता है कि इतने सारे लोग जिन्होंने रॉन्डा बर्न के साथ काम किया है उन्होंने बिल्कुल टाइम पे सब डिलीवर कर दिया, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सब भगवान जैसे थे? ऐसा तो नहीं होगा ना। इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़े से कैजुअल एटीट्यूड के हो सकता है उन्होंने टाइम से डिलीवर नहीं किया और रॉन्डा बर्न को अपना काम, बिकॉज जैसे सपोज कोई एडिटर है, अब एडिटर की लास्ट डेट थी सपोज मंडे, उन्होंने मंडे को नहीं दिया काम, तो रॉन्डा बर्न को हो सकता है गुस्सा आया होगा कि ये तो बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं अपना काम और यू नो सब कुछ। लेकिन फिर भी ये पढ़ के तो हमको नहीं लगाना कि किसी ने उनको परेशान किया इस बुक को फाइनली वर्ल्ड तक लाने के लिए। हो सकता है कि यही होगा, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड है उनका अपने दिल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रॉन्ग थिंग्स दैट दोज पीपल हैव डन, फिर भी वो उनको ब्लेस कर रही है ना, मतलब उनको शुक्राना कर रही हैं उन लोगों को, सबको, अपनी पूरी टीम को। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड वी नीड टू हार्डवायर इन आवर लाइफ सो दैट आवर लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, है ना, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट करना हमको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ये बुक अगर आप रोज सुबह उठ के सुन ही रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा पावरफुल इस किताब की एनर्जी है, रादर दोनों किताबों की एनर्जी। अब इट इज नॉट दैट यू नो आई वी डू दैट बुक बिकॉज समवन्स टेलिंग अस टू डू, सो आई ऑल्सो मेडिटेट ऑन दैट, नो मतलब इतने सारे, जैसे अगर 5 बुक मेरे दिमाग में थे क्या क्या करना है उसमें से, देन आई मेडिटेट, इसीलिए मैं पहले नहीं बता पाती हूँ आपको कि हम सेकंड बुक कौन सी करेंगे, बिकॉज वो जवाब कभी कभी टाइम से आता है, ठीक है, कभी कभी एकदम से आ जाता है कि ये वाली किताब करनी है, कभी टाइम से आता है, बट द बुक्स इफ दे आर कमिंग टू आवर लाइफ दैट मीन्स दैट हमारी जिंदगी का वो इनडेफिनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, बिकॉज जब लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है तभी ये किताब आपकी जिंदगी में आएंगी, नहीं तो आपकी सुबह नींद नहीं खुलेगी, दैट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। कुछ ना कुछ होता रहेगा, फिर हम बोलेंगे नहीं एक्चुअली ना ये रीजन होता है इसलिए मैं सुबह नहीं कर पाती, नहीं नहीं वो रीजन कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट अभी किस्मत में जब तक सफरिंग और लिखी है तब तक आप आ ही नहीं पाओगे, लेकिन आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, ठीक है। किस्मत कभी प्री डेस्टिन होती है, चीजें प्री ऑर्डेन चीजें होती हैं, है ना, लेकिन उसको लगातार चेंज वो होते रहते हैं, प्लैनेट्स भी लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दे आर मूविंग, this energy wise they are changing everything, the air is moving constantly, the molecules of this table where I'm sitting right now or the chair that I'm sitting right now, that is moving। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो जो आपका एक स्टील का बर्तन होता है ना किचन में, सपोज कोई पैन है विच इज मेड अप ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम व्हाटएवर, उसके भी एटॉमिक लेवल पे वो लगातार हिल रहे होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ नेचर इज, ओके। सो मेक दैट लाइफ डेफिनेबल, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट तो हमारा खुद ही बनाना होता है ना, हमको कोई आगे थोड़ी ना बनाएगा कि चलो जी आपका वो समय आ गया है इसी वक्त ही, अब आपकी रोज सुबह नींद खुलेगी और आप अच्छे से ग्रैटिट्यूड अपने आप अंदर हार्डवायर कर लोगे, अब आपकी जिंदगी से बहुत अच्छी जिंदगी खुलने वाली, वो खुद ही करना पड़ता है, ठीक है, खुद ही वो एफर्ट करना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट कैरीड अवे, वी ऑल गेट कैरीड अवे, मैं भी तो आई हूँ ना, मैं आई थिंक 1:30-2 बजे ही सोई हूँ आज, और इनफैक्ट 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, बट जब अपने आप को चॉइस ही नहीं दी है, प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब चॉइस दे दो कि मैं करूं कि मैं नहीं करूं, हाँ मैं करूं, मैं कैसे करूं, ये आपके हाथ में होना चाहिए कि अब मैं कैसे करूं, मैं ऐसे करूं कि मैं वैसे करूं, ठीक है, इस तरह से। सो मतलब इन द सेंस कि ठीक है अगर सपोज आपको अपने बच्चों का टिफिन बनाना है, ठीक है, सो आप फिगर आउट करो कि किस तरह से, एक रात पहले ही फिगर आउट कर लो कि क्या रात को अरेंजमेंट करके रखा जा सकता है कि सुबह जो भी टिफिन बनाना है उसको शॉर्टकट कैसे, बिकॉज फिर आधा घंटा मैं सेशंस सुन सकती हूँ बैठ के और आधा घंटा आई कैन वर्क इन द किचन अलोंग विद इट,
और दैट कि मैं रात में ड्रैग करती हूँ अपने आप को 11-12 बजे तक, सोती नहीं हूँ बिना बात के, ठीक है? Can I just shift my time and make my sleeping time as 10 p.m.? If you're sleeping at 10 p.m., that means you've already taken that first step towards having a monumental life. Okay, that is how it works. So every way, we have to become better and better, which is, your affirmation also. Every day in every way, I'm getting better and better. That is what we need to keep telling ourselves, but take that effort also, no, to keep getting better and better. So it is like that. We have to make that effort to make our life better and better. ठीक है? अपने आप ही इसकी वजह से एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएगी आपकी लाइफ. सो दैट इज व्हाट इट सेज, दैट फाइनली हम सब इस किताब को तब डिस्कवर करेंगे एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, वो वाला लाइफ चेंजिंग मोमेंट जब हमारे पास आंखें होंगी देखने के लिए और कान होंगे सुनने के लिए. इसका मतलब है हमारी किस्मत के खुलने का जब टाइम आएगा, ठीक है, जहां पे हमारे लिए जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, जो आगे की जितने भी रिमेनिंग ईयर्स हैं हमारे, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, why not have a blast of life? Why not have that kind of a life which is like wow factor? है ना? Have that wow factor in the life. Always in everything that we do. Say in relationships, in health, it's like wow factor. I'm enjoying my health to the fullest, suppose. Okay, this is what you have to keep telling yourself. I'm enjoying my relationships to the fullest. All my relationships are amazing. I have so much fun being with people around me. Everybody is caring, supportive, and so much fun to be with. Okay, if this is the mindset, then when it comes to money, oh, I've become a money magnet. Money, I attract money from, even when I'm sleeping, the money is tapkofying in my account. It is just happening. ये इस तरह से हार्डवायर अगर हम अपने आप को कर लेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, and you will have a blast of life, right? Because this is what we are here to. We are not here to suffer. Universe is always life-ward. Why still we suffer? Because we have created something from our life which is making us suffer. एक सेकंड में वो एनर्जी चेंज कर देते हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे होती जाएगी. मेरी जिंदगी से हुई है ना. I mean, like in every area, you see, health wise or whatever, like money wise, relationship wise, all of us didn't know each other for so many years of our lives, isn't it? Some of us know each other so closely. It is so much like a family. जब मैं आपसे पहली बार भी मिलती हूँ, सब ने किसी सिटी गई, मैं पुणे गई और मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ. It does not look like I'm meeting you for the first time, right? I mean, we have such a blast of time, हंस रहे बन रहे हैं, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं ना, तो बहुत आसान होता है कि कुछ भी बात है, आप जजमेंटल नहीं होते हो, वो नहीं होते हो, एंड देन इट्स लाइक वी नोन ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स, ऐसे ही लगता ही नहीं है कि पहली बार हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ना. सो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट, इस तरह से रिलेशनशिप्स आपके चेंज होंगे, पैसा, करियर ग्राफ, जितने लोग भी डिलिजेंटली ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उनका करियर ग्राफ का इतना स्टीप एक्सिलरेशन हो रहा है, जबकि पहले इतना हार्ड वर्क करते थे लेकिन फिर भी स्टैगर होता था. अभी स्टीप एक्सेलरेशन हो रहा है. वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि एनर्जी शिफ्ट कर दी है करियर की तरफ, और करियर को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया है. पहले अगर 10,000 रुपए आते थे तो उसके लिए बोलते थे अरे ये तो बड़ा छोटा सा अमाउंट है, इससे क्या होगा, मतलब इतनी तो मेरे स्टाफ की सैलरी है, एक दिन में ऐसे 10,000 आएगा. अब वो 10,000 क्या 100 रुपए भी आता है तो उसमें इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है, ठीक है. तो उसकी वजह से पैसा loves saying thank you to, okay, and that money will start pouring into your life. So इस तरह से तो ये जो 28 डे जर्नी है इसमें हम अलग अलग वो करेंगे ना, मतलब करियर के लिए भी करते हैं हम, पैसे के लिए भी करते हैं हम, रिलेशनशिप्स के लिए भी करते हैं हम, अपने ट्रैवल्स के लिए भी करेंगे हम, बहुत सारी चीजों हम लोगों के लिए करेंगे. जिन लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी वाला रिलेशनशिप है उनके लिए हम और भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि वहां पे फीलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव बहुत पावरफुल है, तो हम उसको भी वाइप आउट करेंगे, ठीक है. दैट इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. एंड ध्रुवी हम इतना ही आज पढ़ पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग. ओके, सो वी थैंक यू सो मच. सो नाउ वी गो टू द टेलीसाइकिक बुक और हमारी सौम्या मैडम पढ़ेंगी उसको. वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू चैप्टर इन दिस वेरी सिग्निफिकेंट, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको समझाएंगे कि हमारे इनएडवर्टेंटली हमारे जो थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, उसकी वजह से हम लगातार अपनी किस्मत बना रहे होते हैं. तो ये वंडर्स ऑफ द माइंड को हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कोर्स ये काम कैसे करता है, ठीक है, जो ऑफ कोर्स हम
प्रीवियस 2 चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर का नाम ही है हाउ टू लेट टेलीसाइकिक वर्क वंडर्स फॉर यू. सो फॉर पीपल हु आर न्यू, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे और लोग भी आए हुए हैं. टेलीसाइकिक का मतलब होता है कम्युनिकेशन विथ योर सबकॉन्शियस माइंड. सो हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं. कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे 5 सेंसेस से गवर्न होता है, जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, वाओ ये ब्यूटी कितनी अच्छी लग रही है, ये माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, इस पर्सन का बिहेवियर कितना खराब है, मेरा बॉस बहुत वो है, नास्टी है. दैट इज योर कॉन्शियस माइंड. वो जजमेंट्स कर रहा होता है रीजन और लॉजिक के बेसिस पे. दूसरा माइंड हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बहुत सारा डेटा कलेक्टेड है पिछले जन्मों का, जिसके कारण हमारे अभी सर्कमस्टांसेस हैं लाइफ के. ठीक है. सबकॉन्शियस माइंड से हमारी डेस्टिनी क्राफ्ट होती है. अभी जो भी हमारी करंट डेस्टिनी है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, किस तरह के लोग हैं आपकी जिंदगी में, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रेप्लिका है, मिरर इमेज होती है. हम इस जर्नी में ये समझ के सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है पास्ट, हो सकता है वो नेगेटिव पीपल अट्रैक्ट करने की है ना, हो सकता है. हमें तो नहीं पता ना पिछले जन्म में क्या हुआ था. हमें नहीं पता कि जब हम 3 साल के थे तो हमने क्या चीज 1 साल तक लगातार सुनी थी, जिसके कारण आज हम उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. वी डोंट इवन नो एंड वी डोंट वांट टू नो. Okay, we don't want to get a past life all that done. We don't want to, because we know the power is in the now. Okay, right now what you think, what you feel, and what becomes your dominant thought is what is going to craft your destiny for the future. Subconscious mind does not work according to reason and logic. It works according to commands. It works according to what you're thinking and feeling. एंड देन पिछले 6 जन्मों की कोई चीज हो सकता है ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में हो, रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो, मनी इशू हो, पता नहीं क्या. ठीक है. वो आप उसको हटा के एक नया थॉट इम्प्लांट कर सकते हो. और सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी होती है कि वो बहुत फ्लूइड होता है, ट्रेनेबल होता है. तो इसलिए हम पास्ट प्रोग्रामिंग को हटा के एक नया माइंडसेट को इनकलकेट करेंगे अपनी जिंदगी में, सो दैट हमारा आज, कल, परसों और हमारी रेस्ट ऑफ द जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाए. ठीक है. तो हम इसका थोड़ा सा साइंस भी समझ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी के थ्रू, जो हमने बाकी किताबों में भी पढ़ा है. ठीक है. ग्रैटिट्यूड से बहुत ज्यादा फर्क आएगा. आप समझ लो 80% शिफ्ट आपका मैजिक बुक करने से ही आ जाता है. ठीक है. जो रिमेनिंग 20% है वो टेलीसाइकिक कम्युनिकेशन विथ योर सबकॉन्शियस माइंड. अब हम सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे वाले कमांड देंगे. हम बोलेंगे यू आर अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट. ओके, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर अमेजिंग एंड दे गिव मी जॉय, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी एंड लव. ठीक है. अभी तक ऐसे लोग थे हमारे जिंदगी में, हो सकता है जिनको हमने टॉक्सिक वर्ड दिया हुआ था नाम. अब हम वो वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये पता लग गया है कि शब्दों में पावर होती है. अगर हमने ये पर्टिकुलर वर्ड टी वाला यूज किया तो हम अपनी जिंदगी में टी वाले वर्ड ही अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं. अब हम अपने आप में अपने को एक नई वायरिंग कर रहे हैं, that I am surrounded by all happy and positive people in my life, and you will see that टी वाले वर्ड आपकी जिंदगी में आएंगे ही नहीं. और अगर आएंगे भी तो उनका आपके साथ स्वभाव बहुत अच्छा होगा. इट विल बी वेरी डिफरेंट. इट विल नॉट बी दैट टी वाला बिहेवियर. इट विल बी हैप्पी एंड पॉजिटिव बिहेवियर. ओके, बिकॉज आपने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड देके हैमर कर दिया है दैट आई एम सराउंडेड बाय हैप्पी, पॉजिटिव, सपोर्टिव पीपल एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्मनी, पीस, जॉय एंड लव टू माय लाइफ. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग. अगर पैसे का इशू चल रहा है, देन अपने आप को ये हार्ड वायर हम करेंगे दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद ईज, and my monthly income is X rupees per month. Okay, doing the things that I love. So now that thought that I'm not receiving, कैसे आएगा पैसे, क्या करूंगी, that thought will not come only, no, because command ये दे दिया है. अब सबकॉन्शियस का काम है कि किस तरह से आप हर महीने उतना रिसीव करो, है ना. सपोज आपको कोई पार्टनर चाहिए जिंदगी में, लुकिंग फॉर अ like a boyfriend or a girlfriend or a whatever, a husband or a wife, then that command is, thank you universe for giving me the partner of my choice. What is it that I can do? Ask your subconscious mind, what is it, what kind of a person do I need to become that I attract the person of my dreams?
Okay, and try and polish yourself bit by bit by bit. Become the person you want to attract, because like attracts like होता है. अगर आप में अभी 5 कमियां हैं तो आप उन्हीं 5 कमियों वाला पर्सन अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे, and the life is screwed up, right? Obviously, if there is some kami, 5 strong limitations in my life right now, वो 5 लिमिटेशन के साथ ही मैं उसको अट्रैक्ट करूंगी ना, उसमें भी वही वाली कमी होगी. ठीक है, वो भी उतना ही मेस्ड अप है जितनी मैं मेस्ड अप हूं. अगर वो आपकी जिंदगी में भी आ भी जाएगा, ठीक है, तो क्या लाइफ ब्यूटीफुल होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें भी तो वही कमी है जो आप में है बहुत स्ट्रांगली. तो इसीलिए सारी एनर्जी अपने आप को वैसा बनाने में आप लगा दो दैट यू बिकम दैट क्वालिटी ऑफ द पर्सन जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए, सो दैट इन योर एनवायरमेंट यू अट्रैक्ट अ पर्सन. सिंस सो मेनी ऑफ यू लुकिंग फॉर पार्टनर्स इन द ग्रुप, सो दिस इज द रीजन आई नीडेड टू एड्रेस दिस. ओके, तो हम पढ़ते हैं. यस सौम्या, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Thank you for this opportunity. How to let telepsychics work wonders for you. Ralph Waldo Emerson stated, quote, ma'am, upar gaya hai. Okay. Quote, the finite alone has wrought and suffered. The infinite lies stretched in smiling repose. Quote close. The law of your mind is no respecter of person. The law indicates that what you think, you create. What you feel, you attract. What you imagine, you become. All laws are impersonal and are no respecter of persons. This truth applies to your own mind. It is dangerous to meddle with forces you do not understand. For example, if you do not learn the laws of electricity regarding its conductivity, insulation, and the fact that it flows from a higher to a lower potential, you could easily electrocute yourself. Action and reaction are universal characteristics throughout all nature. Another way of illustrating this is to point out that any thought you feel as true is impressed upon your subconscious mind, the law, and your subconscious in turn expresses whatever is impressed upon it, good, bad, or indifferent. या इसका मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड. यू आर कनेक्टेड. मेरी आवाज इको हो रही है ना? ओके. Yes. Yeah. इट वाज, आई थिंक नाउ इट्स बेटर. Yeah, it's fine now. अब नहीं हो रही. हाँ, अब नहीं हो रही है. नहीं, मुझे लग रहा था कि दीपक इज लॉग्ड इन फ्रॉम हिज डिवाइस, बट वो चुपचाप सामने बैठ के सुन रहे हैं मुझे. ओके, सो व्हाट इट मीन्स इज दैट सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत इम्पर्सनल होता है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये अच्छा इंसान है तो क्या मैं इसकी जिंदगी को अच्छा करूं, या ये बुरा इंसान है तो मैं इसकी जिंदगी को नहीं. जो आपके कमांड्स हैं, जो आपके डोमिनेंट थॉट्स हैं, दैट बिकम्स योर लाइफ, फुल स्टॉप. ओके, सो अब अपनी जिंदगी में फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे हमको, और हमें उस तरह का इंसान बनना है. हम बनेंगे ऑब्वियसली. इंटेंशन इस बुक का जब हमने शुरू की तो मैंने भी आपको ये बोला था ना कि दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग, दैट ये जब किताब खत्म होगी हमारी टेलीसाइकिक, बाय देन आपकी जिंदगी में ह्यूज स्ट्राइड्स ऑफ शिफ्ट आर गोना हैपन. एंड दैट विल, बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे. तो जैसे इन्होंने लिखा है ना, फाइनाइट तो दिखता ही है ना. अगर आप रोड पे जा रहे हो, रात में गाड़ी की हेडलाइट से आपको तो दिखेगा ही ना. 100 मीटर तक तो दिख ही जाएगा रोशनी की कैसी रोड है, कहाँ गड्ढे हैं, थोड़ा राइट लेना है कार को, थोड़ा लेफ्ट लेना है, बिकॉज वहां पे पॉट होल्स है, वहां पे अनइवन रोड है. 100 मीटर तक तो हमको दिख ही जाएगा, गाड़ी की हेडलाइट हमको दिखा देगी. लेकिन इनफाइनाइट में जो जॉय है वो हमको पता नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है. तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ताकि आपको वो उसी रास्ते पे लेके जाए जहां पे बहुत ज्यादा पॉटहोल्स नहीं हो. हाँ, पॉटहोल्स होंगे, जहां पे हमसे गलतियां होंगी वहां पे सबकॉन्शियस माइंड हमको बहुत प्यार से सिखाता है. ठीक है, तब भी दुख नहीं होगा सीखने में हमको. सो दिस इज हाउ. सो हम पूरे जिंदगी लाइक इस तरह से जब सबकॉन्शियस माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं तो हमको उस डायमंड की वैल्यू पता लग जाती है.
उसके बाद हमारे पास डायमंड आ जाता है। जब तक हमको वैल्यू पता नहीं होती है तब तक सबकॉन्शियस माइंड हमको डायमंड नहीं देता है। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स, हम जब बॉर्न हुए थे तो हमारे अंदर हमको कुछ चीजें हैं जहां पे स्टेन्स हटाने की जरूरत है। हो सकता है एंगर का स्टेन हो सकता है ग्रीड का स्टेन हो। अब जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि हमको ऑलवेज वी नीड टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन सम वे और द अदर, चाहे हम उसको फिजिकली करें, मेंटली करें, लोगों को ब्लेस करके करें, बट जब तक हमारी जिंदगी किसी और के लिए उपयोग में नहीं आती है तब तक हमारी जिंदगी खुल के एक्सपैंड नहीं होती है। सो अपने आप से ये सवाल करना दैट हाउ एम आई यूजफुल, ओ आई कैन सिट एंड आई कैन ब्लेस 3 people every day, so you're very useful to the world, isn't it? अगर आप 3 लोगों की जिंदगी भी अपनी ब्लेसिंग से चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर वेरी यूजफुल टू द वर्ल्ड। कल आपने और 3 लोग चूज किए, अब आप उन 3 को ब्लेस कर रहे हो, आप यू आर वेरी यूजफुल टू द वर्ल्ड। और अगर आप इस दुनिया के लिए आपने अपने आप को यूजफुल बना लिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड बाय आई मी, मेरा ये मेरा वो, मेरे पास पैसे आ जाए, मेरा ये मेरा ये मेरा 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 मेरा, ठीक है, मेरे बच्चे का, ये जो मेरे बच्चे का, अब दूसरे के बच्चों के लिए प्रे कर दो। आप अपने आप देखना कि आपके बच्चों के कैसे एडमिशंस होते हैं, पट 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 पट, मतलब मेहनत ही नहीं लगती है। दिस इज हाउ energy which is given out always multiplies and comes back to your life, that is the law. So this is how it works, so इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है उसको समझ लो कि देखो ये नेकेड वायर है, ये इंसुलेटेड वायर है, ठीक है। इसी तरीके से हमको अपने सबकॉन्शियस को समझना पड़ता है कि उसमें कोई रीजन एंड लॉजिक नहीं होता। जो आपके डोमिनेंट रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स यू। It is whether you are a good person, bad person, all that's subconscious mind to take care of, but whatever your dominant thoughts are becomes you. So be careful about, or initially consciously filters add करने पड़ेंगे अपने thoughts को। बार बार दिमाग आपको नेगेटिव चीजों में लेके जाएगा, वो भी 25 साल पहले की चीज कोई, ठीक है, या उसने मुझे ऐसा कहा था, या it could just be very recent, it could be yesterday, it could be day before, कि उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, ऐसे किया, एंड सिटिंग एंड थिंकिंग एंड रीथिंकिंग। आपको पता नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें पेनिट्रेट होती जा रही हैं एंड इट्स मेकिंग एन इंप्रेशन देयर। और जो सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारी डेस्टिनी होती है। वी विल सी दैट एज एन आउटवर्ड रियलिटी। दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। इसमें सबकॉन्शियस माइंड को ब्रैकेट में द लॉ लिखा हुआ है। It is a law, whether we believe it or not. This is what our life is all about. But whatever circumstances we have in our life, हमने उनको अट्रैक्ट किया है उनके बारे में नेगेटिव एनर्जी दे दे के। और नेगेटिव एनर्जी में पावर बहुत होती है, क्योंकि इमोशनल होती है वो एनर्जी, ठीक है। इमोशंस के साथ जब एनर्जी जाती है तो वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे, समझेंगे कि नहीं, मुझे ये बोलना है दैट आई एम हैप्पी, सराउंडेड बाय हैप्पी पॉजिटिव पीपल, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, माय लाइफ इज अमेजिंग, माय डेज आर फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स, everything is always working out for me, my vocation is my vacation, my life is a celebration, life is so fun, easy, effortless, it is so beautiful. So this is what you have to keep saying, and that is what becomes the programming of your subconscious mind. और अपने आप जो पुराने प्रोग्राम्स थे सबकॉन्शियस माइंड में, जो पहले के थे, वो अपने आप कंट्रोल और डिलीट हो जाता है। दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। यही हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, that like this is how the mind works. So impression subconscious mind में हम बनाएंगे, और अब ये experiences के साथ हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझाते हैं। तो अब हम एक इंसान का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि कैसे how a mind reclaimed the lost love। हाँ जी। How a man reclaimed lost love. A man once complained to me that after 15 years of married life, he had discovered that his wife was unfaithful. She had found someone else. In talking over his problems, he mentioned that 6 months before, he had visited her at the office where she worked. He noticed that her boss was very handsome and attractive as well as wealthy. He said, quote, I felt sure she would run around with him, and it was my constant fear, though I said nothing to her, close quote. At that moment, apparently, the pangs of jealousy seized him, and what he feared most came upon him. He had a knowledge of the laws of mind, having read Amazing Laws of Cosmic Mind Power. We discussed and elaborated on
what he was doing, and he understood that his constant thoughts and mental imagery of his wife's wandering had been conveyed subconsciously to his wife and were impressed into her subconscious mind. His wife knew nothing about the workings of his mind. Actually, his fear thoughts plus his definite belief that she would run around were picked up by her deeper mind. According to his belief, his thoughts became a near reality. Actually, he was responsible because the intensity of his thoughts and mental imagery were so powerful that he actually accelerated and precipitated his unfortunate marital strife. He realized his own fault. He had used the law of his mind in a very negative way. As a result, he experienced the corresponding results. Consequently, at my suggestion, he became humble enough to talk over the matter with his wife and at the same time told her the way in which he had been misusing his mind. She tearfully admitted the growing friendship and broke off the relationship with her boss. She secured another position, and the spirit of forgiveness and divine love united them again. He banished all fear as well as his sense of jealousy by adhering to the following scientific prayer process. My wife is receptive to my constructive thought and imagery. At the center of her being is peace. God is guiding her. Divine right action governs her. There are harmony, love, peace, and understanding between us. Whenever I think of her, I will immediately pronounce a benediction and say, God loves you and cares for you. He made a habit of this prayer and is now free from fear and jealousy, which are children of fear. Their marriage is growing more blessed every day. Job said, quote, that which I greatly feared has come upon me, unquote. Reverse it and it is equally true, colon. Quotes again, that which I greatly love has come into my life and experience, unquote. Yeah. I think हमको यही वाली लाइन अपने आप को बार बार बोलनी चाहिए. That which I greatly love has come into my life and experience. है ना? That goes for everything. If you love world travel, the world travels are going to fall into your lap. If it is anything that you really love, if it's the money that you really love, the money will start pouring into your life. It'll start raining into your life, isn't it? So इसमें experience जो दिया हुआ है, how the man reclaimed his lost love. So वो बहुत like insecure था. कई marriages होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा insecure होते हैं spouses, the guys are very insecure that मेरी बीवी इतनी सुंदर है, वो जहाँ जाएगी उसको लोग देखेंगे, like, और वो जिस ऑफिस में काम करेगी वहां पे the men are going to dote on her, eye her all the time or whatever. So इसी तरीके से उसकी marriage was on the rocks because his wife was seeing someone else, जो experiences में लिखा हुआ है. और वो उसको पता लगा कि वो ही 6 महीने पहले अपने वाइफ के ऑफिस में गया था और उसने देखा था कि वो जो बॉस था, वाइफ का जो बॉस था, वो बहुत वेल्दी, हैंडसम, नाइस गाय. ओके, तो जैसे ही वो बॉस से मिला उसको इनसिक्योरिटी हुई, जेलसी हुई कि मतलब मेरी वाइफ इतने अच्छे बॉस के साथ रोज काम करती है, पूरे दिन ऑफिस में रहती है ना. देयर आर सो मेनी हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स वो वेरी वेरी इनसिक्योर. सो वो चीज, वो वाला फैक्टर था. तो उसने इतना डीपली, इतना एयर टाइम दिया उस पर्टिकुलर थॉट को दैट वो हकीकत में बदल गया. तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में आपके बाहर हो रही है, वो आप ही ने अट्रैक्ट की है अपने दिमाग से. तो इसके बाद मैन ने अपनी वाइफ को एक्चुअली बोला कि बताया सब कुछ साफ साफ कि ये जो सिचुएशन है दैट यू आर लाइक यू आर सीइंग दैट पर्सन, एक्चुअली शी वेंट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट बॉस, बिकॉज वो हस्बैंड ने मैनिफेस्ट की थी उसके लिए.
आउट ऑफ जेलसी और आउट ऑफ वट एवर, बिकॉज बार बार यही सोचना कि वो दोनों साथ रहते हैं, वो दोनों साथ रहते हैं, तो वो दिन आ गया जब वो दोनों साथ ही रहने लग गए, ठीक है। तो हस्बैंड को बाद में रियलाइज हुआ दैट मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी, इमोशनल एनर्जी इस चीज में इन्वेस्ट करी थी, ये सोच सोच के कि ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण एक्चुअली ऐसा हुआ। और फिर फाइनली उसने अपने वाइफ को भी बताया कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, मैंने ही बहुत ज्यादा सोचा था इस चीज के बारे में जिसके कारण यू आर इन रिलेशनशिप विथ हिम। तो उसके बाद उसने अपना सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड थे वो चेंज किया। उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं इसको रिक्रिएट भी तो कर सकता हूँ ना, अपने थॉट्स को चेंज करके। मेरे ही थॉट्स ने ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया, अब मेरे ही थॉट्स इस सिचुएशन को रिक्रिएट भी कर सकते हैं, है ना। फिर उन्होंने अपने आप को ये दूसरी चीज बोलनी शुरू की और उन्होंने कहा दैट you know God is guiding her, divine right action governs her, there's harmony, love, peace and understanding between us, whenever I think of her I will immediately, उसने अपने आप पे वर्क किया, ठीक है। तो उसने कहा कि जब भी मेरे दिमाग में इनसिक्योरिटी आएगी और उसके बारे में ख्याल आएगा तो मैं यही बोलूंगा, गॉड लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू, इस तरह से। और उसने इन थॉट्स को चेंज करके अपने अंदर से फियर, इनसिक्योरिटी और जेलसी को हटाया, बार बार अपने आप को कमांड देके, है ना। और फिर इस तरह से उन्होंने ये फाइनली कोट ट्रू हो गया, दैट विच आई ग्रेटली लव हैज कम इनटू माय लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड दैट इज हाउ दैट सिचुएशन वाज चेंज। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा है, ये इंपॉर्टेंट होता है दैट हमने इस एग्जाम्पल से ये सीखा है दैट हमारे दिमाग में जो चीज चल रही होती है, अच्छी या बुरी, सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत नहीं पता होता, ट्रू एंड फॉल्स नहीं पता होता, जो हम सोचेंगे वो हकीकत में बदल जाता है। इट इज अ सिंपल फैक्ट, okay, and that is what we need to kind of be careful about. So think twice about. So सौम्या, हम इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, Priya Di, for giving this opportunity. सो कल ये जो द इनफाइनाइट पावर वर्क्स वंडर्स फॉर हर, अगेन हम इसमें इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे जहां पे हमको पता लगेगा दैट हमारे माइंड में पावर कितनी होती है, हमारे थॉट्स में कितनी पावर होती है। अब जैसे हमने आज वाला पढ़ा है ना, इनसिक्योरिटी एंड जेलसी किसी में भी हो सकती है, ठीक है। इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, अगर आप इनसिक्योरिटी एंड जेलसी में ड्वेल करोगे तो वैसी होगी, इसका मतलब है दैट आप उसको, अब ये तो नॉर्मल इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस है ना, आते ही हैं कई बार, विच इज, बट जैसे ये इमोशन आया उस वक्त आप उसको एकदम से कैंसिल कर दो, टेल योर माइंड कैंसिल एंड इम्प्लांट द न्यू थॉट दैट माय रिलेशनशिप इज वेरी सिक्योर एंड वेरी सॉलिड, ओके, दैट इज इट। अपने आप को ये कमांड देते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस नए वाले सेंटेंस को भी एक्सेप्ट करेगा और अब ये सीमेंट होने लग जाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, that if that my relationship is very secure and very solid and we have love understanding between us, or whatever you want to say, or if it is to do with money, so many of you are still struggling with money because maybe आपकी regularity, consistency of assignments नहीं है या thought process अभी भी वैसा है ना। क्योंकि देखो 2 दिन भी अगर हम किताब नहीं करते हैं तो हमारा डाउनवर्ड स्पाइरल होने लग जाता है। सो कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंटली हम करते रहेंगे प्रैक्टिसेस तो अपने आप हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर हमको पता है कि अगर हमको किसी को 5 रुपीज भी निकाल के देने, वी हैव टू गिव इट विद जॉय, okay, so we have to give it with joy and with a lot of love that I'm capable of giving this 5 rupees to so and so person and thank you paid. So that is how it is like. So rewiring हमारे दिमाग की चलती रहेगी और कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी जिंदगी में। कुछ तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा ना कहीं, अगर आप वो ले लोगे, when you do that for your life, life will give you the best of it to you, that I can assure you, okay. So this is how much is there. So आज मैंने दोनों किताबें में फंडामेंटल समझाए, we have not done much though, so but that is what we need to do and control our thoughts, very very important, okay. जैसे ही आप नेगेटिव जोन में जाते हो, इमीडिएटली कैंसिल आउट दैट नेगेटिव थॉट एंड इम्प्लांट उसका। सपोज किसी से रिश्ता खराब हुआ है, किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है और your wife has just told you something that you don't want that kitch going on all the time, or that whining, or husband has told you something and you don't like, or mom-in-law has told you and you're thinking, immediately change that thought and say thank you for my perfect relationship, all my relationships are amazing and I'm always surrounded by positive happy people, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियली करना पड़ेगा शुरू में, गुस्सा आ रहा है तो ऐसी चीज तो आएगी नहीं, लेकिन एनर्जी 7:15 हो गया है, 15।
Hi, Rachna. Yeah. So this is how it actually works. So this is how it actually works. Okay. So we'll take care, we'll take charge of our life. We will sit right behind the steering wheel of our car now. अपनी जिंदगी के steering wheel, जिंदगी की कार के steering wheel के पीछे हम बैठेंगे और steering wheel को टाइट पकड़ के रखेंगे और उसको लेफ्ट नहीं लुढ़कने देंगे, इधर नहीं लुढ़कने देंगे, ठीक है? अपने आप को रोड पे रखने की कोशिश करेंगे और जिस डायरेक्शन में हमको जाना है हम उस वाले थॉट्स को सोचेंगे, चाहे हमको मैकेनिकली सोचना पड़े. Yeah, that is what we have to do today. So we had two, I mean, yesterday there were two of y'all who wanted to. Ritu, एक तो आपको बोलना था कल. And अपना ma'am, hand. I have to leave actually for a moment. So today is Rita Ji's birthday and Ragini Yadav's birthday also. So they are seeking your Okay. blessings. So hi Yeah. Rita ji and Ragini, wish you both a very, very happy birthday from all of us, and may your life be full of joy, love, happiness. So life is going to be full of joy, love, happiness. Create your Thank dream you. life and just walk on that path. Yeah, thank you so much, Dipti, and thank you, Priya. Thank you so much for everything. It's such a beautiful journey which I have started with you all. So I am from Bangkok, and I do come to Delhi also. My children are there. So I have one wish from you. That is Uh-huh. that when I come to Delhi in end of February, I would love to meet you. Absolutely. This And February you're coming to India? yeah, I keep coming after a month or two because my children are there. So Yeah. that's how it is. Oh, So I anytime. Just give me a, like drop me a text that you are in Delhi. So if I'm around in Delhi, so anyhow, I'm sure you'll be here for a while, yeah. I will be here for a month or so. Yeah, So that's how. Then we easily get I'll the find best it. available Yeah. time. And Yeah. definitely I need blessings today from you all and for my children. No, definitely you're going to have. Today will bless only you. The children's blessing will come through you. Today it's your day. It's your very special day. So your life is going to be full of happiness, love, harmony, peace, amazing health. Thank you. Thank you so much. You know, you must have read it somewhere that one has to be grateful to people who make us happy. So they are charming gardeners who make our soul. So it's exactly this wordings are for you, Dipti, that you're changing everybody so beautifully. And I mean, I had no words for it, but it's just the blessings. I can also say that you lots Oh, and lots thank of you so blessings much. from all of us for making our day and changing us completely. No, thank you So so thank much. you. Thank you so much. I need your blessings. I have great things that I have in my dream list that I want to achieve and do, Yeah. which are again transformational for people around in this world, and try and do my own little attempt in my own unique way to make this world a better place to live in, where people don't have to suffer and they just, like they savor the joy of life. So that's what my always intention is. And thank you so much. Thank you to Thank you. all of you also to keep your hand on my head all the time. Thank you so much. Thank you, Rita ji, You know, and you enjoy are your a blessing to all of us, but today, because I am I am a senior person, so my blessings go for like that for you, so that, you bring more and more happiness to all of us in the group. Love. Thank you And so much. really nice Thank you. knowing you. I will Thank you I so will much. try my level best, till the last breath of my life to make this world a beautiful place and all of y'all. Yeah. Thank you so Thank much. you. Thank You've you. already started that journey. You are Yeah. in that journey. Thank you. Thank you so Thank you so much. much. Thank you. Thank you, Dipsy everybody. ki ho gayi, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह. Yes, Yes. Sudesh Sikka. Yes, I remember your hand was raised yesterday. Please unmute yourself. Ritu's not there on the call today. She wanted to share yesterday. गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग Good एवरीवन morning. हाँ जी. मैम मेरे को बस यही कहना था वो लता अपनी जब शेयरिंग कर रही थी ना हाँ. तो वो जेन्युइन में उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है लता को देख के उसकी फैमिली ने भी सबने बहुत प्रैक्टिस किया है और जब वो आपके लिए बोल रही थी ना तो उनके साथ एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है आपकी वॉइस
आपका फेस उन लोगों को इतना अट्रैक्ट किया ना कि वो छोड़ ही नहीं पाई सेशन। और बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो। कल फर्स्ट टाइम बोल रही थी तो वो बहुत नर्वस थी, बोल रही थी कि मैं बोल नहीं पाई, प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादा नहीं बता पाई। और मेरे थॉट में एक गाना आया था उस समय, बस मेरे को वही यही बताना था आप लोगों को कि आपके साथ पता क्या है, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। दैट्स इट मैम। यही तो मैं आपसे भी सवाल कर सकती हूँ, इतने दिन तुम थी कहाँ, पहले क्यों नहीं आई मेरी जिंदगी में? थैंक म्यूचुअल क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, दिस इज सो स्वीट। अमेजिंग सिंगर भी हैं आप, आज हमने डिस्कवर किया आपकी सिंगिंग एबिलिटीज को भी। डांसिंग तो देख ली थी। Thank you so much. And thank you, Lata, for following the practices so diligently. And I love you all too so much. Thank you so much. Yes, Sudesika, please unmute and show your face. आपका हैंड तो रेज्ड है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है शायद आपसे। कैमरा कैमरा एंड अनम्यूट। लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए आप दोबारा से, हो जाएगा। Can you put in the chat box if you're facing an issue? Because then otherwise we close the meeting for today. Since it's a work day for all of us, because Monday is a fun Let day. us try from our side, ma'am. She has unmuted herself, I think. Okay. सुदेश जी, आप बोलिए। हो गया, I हाँ, think. अब आ गया, अब आ हाँ गया। जी। थैंक यू सो मच। और बेला ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मैंने अभी एक ही हफ्ता हुआ है ज्वाइन किया इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने आप को फील करती हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी लाइट। ऐसे लग रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा बोझ था जो मेरा बिल्कुल हट गया है। मतलब आप कहाँ आपकी, रहते हैं? आई एम इन यूएस, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में। Okay. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मैंने आपसे ब्लेसिंग्स लेनी थी। आई हैव अप्लाइड फॉर ग्रीन कार्ड और इसके लिए 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी यही होता है कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ करते हुए। तो मैं क्या करूं कि मुझे मिल जाए? अगर आपको सपोज अभी ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो अभी आपकी फीलिंग कैसी होगी? और व्हाट इज दैट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे? टुडे इफ यू गेट ग्रीन कार्ड, आज ही अगर मिल जाता है तो आप क्या आई विल बी करोगे? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। Will you go to the mandir and say thank you to the God? Would you want to या do that? आई कैन गो, है ना? हाँ, so दो just इट्स take that फार ऑफ। green card in your visualization. Just go to the mandir today in your visualization. Just go to the mandir and say thank you, and say cut the cake and celebrate receiving of your green card in your imagination. और ओके। उसमें आप रोज आप लिखे 11 बार। आपको लिखने की आदत है? I mean, would you be able to do हाँ हाँ, it? मैंने है ना? अभी बेला रोज बेला 11 ने मुझे बार। बताया था, आई हैव स्टार्टेड 369 and अच्छा, you're doing I that am already. ठीक है, continue I am doing that. You'll shall have I to do write it till the day 11 you times? receive it. No, no, no. 369 कर रहे हो तो करो. Don't mix the practices. Okay. 369 कर रहे हो तो आप उस दिन तक लिखो जब तक आपके हाथ में ग्रीन कार्ड नहीं आ जाता. And बिल्कुल lack की feeling नहीं आनी चाहिए when you're writing that. Like it is No. like thank you that I have received my green card with so much ease. You know, that is Yeah. what you need to write. And उसमें वो लैक की फीलिंग मत आने दीजिए. मतलब डोंट गेट इनटू हाउ कि कैसे होगा, इतना टाइम लग रहा है. डोंट गेट इनटू हाउ. बस आप ये फील कीजिए कि आपके पास आ गया है, यू सेलिब्रेटिंग कटिंग द केक इन द हाउस और गेटिंग अ मिठाई का डब्बा और going to the time, Okay. whatever it is that you want to do after Okay. receiving Okay. it. Okay. And That one is more all. thing I want to ask you. Last October, I wrote 55 into 5 and this 369, but it didn't have any effect because I was not feeling gratitude to God. तो अब मैंने वो शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट जरूर होगा। हाँ, अरे बहुत कमाल का इफेक्ट होगा. आपको पता भी नहीं यूनिवर्स किस तरह से हमारे लिए, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ. सो गेट यूज्ड टू दैट. अच्छा, और ये एक रिक्वेस्ट थी कि मुझे भी ये जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं मुझे भी भेजनी शुरू कर देंगी, तो आप मैं ये कैसे? रोज की रोज आती हैं. आप ग्रुप में हैं सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग नहीं में? नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो मुझे वही उसमें कैसे अपने आप को रजिस्टर करूँ मैं? तो इट्स जो यूट्यूब पे आप सुनते हैं हमको.
नहीं, मैं उसने लिंक भेजा ना, मैं लिंक से ही सुनती हूँ। अच्छा, लिंक से ही करते हैं। अच्छा, तो एक हाँ, हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा। टेलीग्राम ऐप, व्हाट्सएप जैसे व्हाट्सएप हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, हम्म। वैसे ही हाँ, टेलीग्राम ग्रुप भी करते हैं। दोनों ग्रुप्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप में रोज का ये यूट्यूब पे आपको मिलेंगे रोज के वीडियोस। तो आप अच्छा। यूट्यूब के सर्च में अगर आप जाएंगे और वहां पे आप टाइप करेंगे मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा, तो ठीक है। हमारे रोज की वीडियोस वहां पे हैं। और ये हम मई 2020 मतलब 23 से लगातार अपलोड कर रहे हैं। पहले हम यूट्यूब पे नहीं जाते थे, लेकिन फिर अच्छा। हमको पता लगा कि ये बहुत सारे, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया में हैं, जिनको हम्म। रोज की रोज हमको रिकॉर्डिंग्स भेजनी पड़ती थी, तो यस। हमने फिर अपने आप को यूट्यूब पे लाइव कर दिया। तो अब आप जैसे अभी भी, आप जैसे ही सेशन खत्म होगा, आप यूट्यूब पे जाके ऊपर सर्च जो होता है वहां टाइप करेंगे मैजिक्स एंड मिरेकल्स, दैट जादू एंड चमत्कार, मैजिक्स एंड ठीक मिरेकल्स है। बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा। वहां पे सारे यूट्यूब के वीडियोस आ जाएंगे। वहां पे इसकी पुरानी वाली किताब भी आ जाएगी, मे वाली, विच इज ओके। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस ओके। माइंड। तो आप उनको बार बार सुन सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक। तो रोज की रिकॉर्डिंग रोज पोस्ट होती है, मतलब उस हम्म। पे, हम्म। जैसे प्रिया 8:30 बजे तक कर देती हैं, 8:30-9 बजे तक, आज की हाँ जैसे जी। आज वाली सेशन की रिकॉर्डिंग। सो यू कैन लिसन टू इट। आई ऑल्सो लिसन टू माई रिकॉर्डिंग्स एवरी डे। सो मैम प्लीज आप अपना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन ऐड यू देयर, हाँ, we'll add है you ना? to the group. माय Yes, फोन ma'am. नंबर Yes, ma'am, of course, your phone number. इट्स, या आपने जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया, आप उनको अपना नंबर दे दीजिए, हम कोऑर्डिनेट कर उनके लेंगे। पास है। शी ट्राइड बट शी सेड सम एडमिन कैन एंटर योर Yeah, नेम। yeah. So she will give to Oh, any of us. No, there are 14 people who are admins. So अगर ओके। वो किसी भी एक पर्सन को एडमिन की लिस्ट में व्हाट्सएप में उनको नजर आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हाँ में, जी, हाँ तो जी, हाँ उनको जी। नजर आ जाएगा दैट हु ऑल आर द एडमिन्स। वो एडमिन्स में से किसी को भी नंबर भिजवा देंगे आपका, वो पर्सन आपको ऐड ठीक, कर देगा, वो कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ठीक। ठीक है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और उन्होंने Yeah. डॉक्टर मुकिल को भेजा था, को बोला है वो, बिकॉज ही नोज द एडमिन्स, 2-3 एडमिन्स। तो अगर वो ट्राई कर लेंगे तो उनसे हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर ठीक है, अपने आप डॉक्टर कर लूंगी। नकुल, you'll डॉक्टर have to do that. नुकिल, ओके। From Ludhiana, he will do हाँ that. जी, हाँ जी, We'll हाँ जी। coordinate with Dr. Nakul. Any one of us will coordinate with Dr. Nakul and do it. बेटी जी, आप कर लेंगे, जी ओके, जी मैं थैंक कर यू जी। लूंगी। है ना? ठीक डॉक्टर है नकुल मैं को कर आप कांटेक्ट जी कर मैं लीजिए, डॉक्टर क्योंकि आप नकुल भी से ले वहीं लेती रहते हैं, है ना? जी जी We'll do that ठीक। today. Thank you so ओके, much. थैंक Thank यू you, सर, everyone. थैंक Bye यू। bye. Have a Thank Thank you you, beautiful so much, Dipti. ma'am. Thank you so थैंक यू much. दीप्ति Bye bye, बाय ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am.